हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक एक्सेल लर्निंग मतलब सीखेंगे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बेसिक एक्सेल, ये स्टार्टर्स है हम लोग के लिए कि हाउ टू स्टार्ट एन एक्सेल, what are the different basic functions of excel. Today we are going to learn. Before going through, we will learn the definition of Microsoft Excel. Microsoft Excel क्या है? Microsoft Excel is a spreadsheet editor developed by Microsoft for Windows, Mac OS, Android, iOS and iPad OS. It features इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स are कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन कैपेबिलिटी, ग्राफिक टूलिंग्स, pivot table, macro programming language called Visual Basics for application. Excel form part of Microsoft 365 suite of software. 365 भी नया आया है जो कि जिसमें एक्सेल उसी का पार्ट है. Microsoft Excel has a basic features of all spreadsheets. इसके फीचर्स है कि वो स्प्रेडशीट प्रोवाइड करता है, जैसे कि यूजिंग अ ग्रिड ऑफ सेल्स. ग्रिड मतलब जो बीच बीच में जो बॉक्सेस होते हैं उसको ग्रिड लाइन बोलते हैं. अरेंज इन नंबर ऑफ रोज एंड लेटर नंबर्ड कॉलम टू ऑर्गेनाइज डाटा मैनिपुलेशन लाइक अरिथमेटिक ऑपरेशन. वर्कशीट है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ वर्कशीट. इट हैज 10,48,576 रोज है और 16,384 कॉलम्स है. एक्सेल में 10,48,576 रोज है और 16,384. अभी आज हम सीखेंगे बिगिनर्स के लिए एक्सेल कैसे स्टार्ट होता है, व्हाट आर द फंक्शंस इन एक्सेल, हाउ टू यूज द बेसिक फंक्शंस ऑफ एक्सेल. सो हम लोग आज बेसिक फंक्शन जानेंगे एक्सेल का. पहले तो हम जानेंगे ये फाइल्स, होम, इंसर्ट, दीज आर द रिबन्स ऑफ एक्सेल. फंक्शंस है, डिफरेंट रिबन्स है जिनके अंदर में कंबाइंड फंक्शंस होते हैं. ये बीच में होम का एक लाइन है. ये होम के अंदर में कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, क्लिपबोर्ड, दीज आर ग्रुप्ड. Homes are grouped. Insert is grouped in different sections. Insert में आपका pivot table, recommended pivot table, table, how to insert table, different shapes, recommended charts, line, columns, slicer, ये सब चीजें insert के अंदर में आती है. Equation, symbols है, header and footer. Then draw is एक draw के अंदर में erasers आते हैं, different panes आते हैं, add panes, link to the shape. देन पेज लेआउट का फंक्शंस के अंदर में हाउ टू मार्जिन द पेज को कैसे मार्जिन किया जाता है, ओरिएंटेशन किया जाता है, साइज किया जाता है, फिर प्रिंट कैसे किया जाता है, पेज ब्रेकअप कैसे होता है, बैकग्राउंड कैसे होता है. दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन द पेज लेआउट. Now in formula it is a very vast function. Various functions are there in Excel. So we will learn step by step what are the different ribbons and how we can operate these functions in Excel. So insert function is there, formulas के अंदर में auto sum is there, financials, logical text, date and time. Lookups are there, various lookups like VLOOKUP, HLOOKUP, hyperlinks is there. Then trace dependence formulas are there. Now in data we can get data. Then how to sort, how to filter data, text to column, flash fill, remove duplicates. These are the functions of data. Reviews. Now spelling check, workbook statistics, smart lookups, translators, protect workbook, hide the links. Now view. In view, page breaker view, how to view the profile, how normal view is there, page breakup view is there, page layout view is there, customized view is there. Now how you will zoom Excel sheet, then how to freeze the pane, split, how to split data, hide the data. These are in views option. Developer is a advanced function which we learn in the later part of our Excel. Today we are going to discuss some of the basics of the. Now we are discussing the various functions of ribbons which are in the Excel. Like in file there are various functions, like there is a new.
न्यू फंक्शन इज दैट फंक्शन, ये वाला वो फंक्शन है जिससे हम लोग एक न्यू ब्लैंक शीट को ओपन करते हैं। एक ब्लैंक शीट हम लोग एक्सेल में कैसे लाते हैं, हम लोग फाइल्स मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे न्यू एक ऑप्शन रहेगा, इस न्यू ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक दिख रहा है, ये ब्लैंक वर्कबुक को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, तो एक नया एक्सेल खुल के आ जाएगा। अगर आपको नया एक्सेल चाहिए तो ये फाइल्स है, ये सेव एज है, इसको आप कैसे यूज करोगे, या जैसे कि वही डाटा को अगर आप सेव एज करना चाहते हो न्यू वर्कबुक का नाम देके, तो इसको आप सेव कर सकते हो डेस्कटॉप में। ये डेस्कटॉप में आप कहीं पे भी सेव कर सकते हो। प्रिंट ऑप्शन है, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को, प्रिंटर से अटैच होना चाहिए। शेयर मतलब आप इसको शेयर कर रहे हो क्लाउड में, ईमेल्स में, अगर आप यहाँ पे अटैच करके अपने डाटा को अटैच करके आप शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर ईमेल्स में आप भेज भी सकते हो किसी और। एक्सपोर्ट मतलब आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो पीडीएफ में, तो इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हो अगर आप इस एक्सेल को, तो आप पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। पब्लिश मतलब आप पावर बीआई में, ये सब एडवांस फंक्शन है, ये हम लोग बाद में जानेंगे। ये सब तो फाइल्स के अंदर में, जो भी फाइल्स के अंदर में ऑप्शंस थे ये हम समझ लिया। सो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन फाइल। होम के अंदर में आपको ये जो लाइंस है, ये डिफरेंट लाइंस है जो कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को डिवाइड किया हुआ है। होम के अंदर में ये है ऑप्शन कट। कट मतलब क्या होता है कि अब अगर आपने ये लिखा कट इज द फंक्शन ऑफ एक्सेल, कट इज द फंक्शन ऑफ एक्सेल, ये आपने लिखा, एंड द शॉर्टकट ऑफ कट इज, कंट्रोल एक्स करोगे, जैसे कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स को काटना है, तो आप ये होम के अंदर में ये कट ऑप्शन है, तो इसको काट दिया आपने। और अगर आपको यहाँ पे पेस्ट करना है दूसरे सेक्शन में, आई के अंदर में यहाँ पे पेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। इस पेस्ट ऑप्शन में आप जाए तो देखिए ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ से कट होके यहाँ पेस्ट होगी। का शॉर्टकट क्या है, अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हो अपने, तो कंट्रोल, इसी को आप सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल एक्स आपने कर लिया। अब आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी, कंट्रोल, तो यहाँ से कट होके ये यहाँ पेस्ट होगी। तो आप कंट्रोल एक्स इज द शॉर्टकट ऑफ कट एंड कंट्रोल वी इज द शॉर्टकट ऑफ पेस्ट। अब उसको कट करके पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल वी करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल, देखिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये कट हो गया। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी कीजिए, ये पेस्ट हो जाएगा। ये तो हो गया शॉर्टकट फ्रॉम कीबोर्ड। और अगर आप यहाँ से करना चाहते हो तो यहाँ से आप कट ऑप्शन देखिए, होम के अंदर कट ऑप्शन है, इसको आपने कट किया और यहाँ एक पेस्ट ऑप्शन है, उसी के बगल में ये पेस्ट, आपने पेस्ट कर दिया इसको यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से कट होके ये यहाँ पेस्ट हो गया। तो ये फंक्शन है कट और पेस्ट का। देखिए अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कैसे करोगे, ये कॉपी ऑप्शन है, कॉपी कीजिए इसको और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, ये पेस्ट ऑप्शन है, इसको पेस्ट कर दीजिए तो ये पेस्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ से ये रिमूव नहीं हुआ, कॉपी मतलब एक से ज्यादा, इसी को आपने कॉपी करके एक और कॉपी बना ली, तो ये हो गया कॉपी का फंक्शन। तो कॉपी मतलब कॉपी करना और कट मतलब पूरा ही रिमूव करके दूसरी जगह पेस्ट कर दे। अगर आप कीबोर्ड से जाना चाहते हो तो कंट्रोल सी आप करोगे और कंट्रोल वी करोगे तो आपका यही कॉपी होके यहाँ पे आ जाएगा। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर मतलब सपोज आप व्हाट इज रिबन मतलब ये सब, ये जो पूरे फंक्शंस को, एक्सेल के डिफरेंट टैब्स को बोलते हैं रिबन्स। अब आप इसको अगर आप फॉर्मेट करते हो, इसको आपने रेड कलर किया, ये आई बटन जो है इटैलिक्स में है, इसको आपका फॉन्ट को आपने बड़ा कर दिया, तो ये व्हाट इज रिबन हो गया, मतलब इस फॉन्ट में इस कलर में हो गया। अब बाकी के ये जो डिफरेंट ये सब है, आप इसी को सेम फॉन्ट में लाना चाहते हो तो आप इसको अलग अलग, तो अगर करोगे तो अलग अलग बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप एक साथ क्या करोगे, इसको फॉर्मेट पेंटर करोगे। इस फॉर्मेट पेंटर, ये एक ब्रश टाइप का है यहाँ पे, इसको फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं। तो आप इसको क्लिक करोगे, इस जिसपे आपने ऑलरेडी फॉर्मेट सेट कर रखा है, उसको आप उस पे क्लिक करोगे, उसके ऑप्शंस को सिलेक्ट करोगे, बाकी जिसमें आपको करना है उस पे आप ये ब्रश लगा दोगे, तो देखिए ये पूरा फॉर्मेट पेंटर हो, ये पूरा फॉर्मेट पेंटर हो गया। ये फॉर्मेट पेंटर का फंक्शन है। तो भी लाइंस को जिस फॉर्मेट में आप करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्स को उसी सेम फॉर्मेट में करना चाहते हो, तो आप फॉर्मेट पेंटर की फंक्शन से भी उसको उस फॉन्ट में ला सकते। व्हाट इज रो मतलब ये जो सारे सेल्स हैं जो कि स्लैंटिंग है जो
सब लेटे हुए हैं स्लैंटिंग में, वो सारे ये सब रोज है, ये सारे रोज है। और कॉलम्स है जो स्टैंडिंग में है, ये सारे कॉलम्स है। व्हाट इज रो? जो स्लैंटिंग में है वो सारे रोज है, और जो स्टैंडिंग में है वो सारे कॉलम्स है। अब टैब की फंक्शन क्या होता है? टैब की फंक्शन मतलब सपोज ये आपने लिखा हुआ है, ये सब को सेल्स बोलते हैं जिसमें आप लिखते हो टेक्स्ट, तो ये सब सेल्स है। अब अगर आपको इस सेल्स को आगे बढ़ाना है, राइट में ले जाना है, तो आप टैब की फंक्शंस को क्लिक करोगे तो ये देखिए आगे बढ़ता जाएगा। सपोज आपको यहाँ लिखना है, फिर आपको यहाँ 2 लिखना है, फिर आपको यहाँ 3 लिखना है, फिर यहाँ आपको 4 लिखना है, तो आप टैब की फंक्शन प्रेस करके लिख सकते हो। फिर आपको देखिए एंटर फंक्शन क्या करता है कि आप कोई भी, सपोज आपने एक लाइन लिखी, उसके बाद आप एंटर करोगे तो आपको दूसरी लाइन भी आप लिख सकते हो, जैसे कि ऑल इज वेल। सो ये दूसरी लाइन हो गई। डाउन एरो मतलब कि आप डाउन एरो से भी कर सकते हो। डाउन एरो आपके पास मिला। अप एरो मतलब ऊपर आप ले जा रहे हो। राइट एरो मतलब आप राइट की तरफ ले जा रहे हो। लेफ्ट एरो मतलब आप लेफ्ट की तरफ ले जा रहे हो। टेक्स्ट के लेफ्ट की तरफ अगर आप ले जाओगे तो लेफ्ट एरो। राइट एरो मतलब आप राइट की तरफ ले जा रहे हो। डाउन एरो मतलब आप नीचे ले जा रहे हो, और अप एरो मतलब आप ऊपर ले जा रहे हो। ये सब एरोज फंक्शंस हाउ दे आर वर्किंग। एरोज फंक्शन इस तरह से वर्क करते हैं। ऑल्ट की फंक्शन मतलब अगर आप ऑल्ट फंक्शन सिलेक्ट, ऑल्ट ए सिलेक्ट करोगे, ऑल्ट ए, तो आपका पूरा सीट सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप इस सीट को कॉपी करके कोई दूसरी शीट में ले जाना चाहते हो तो आप यहाँ से शीट सिलेक्ट करके वो पूरी शीट को आप कंट्रोल वी करके पेस्ट। देखिए अगर आपको बोल्ड करना, व्हाट इज रिबन है ये लिखा हुआ है, तो आप इसको बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड मतलब आप इसको हाईलाइट कर सकते हो डार्कर में और मोटे मोटे अक्षरों में। फिर आप इसको इटैलिक्स में भी दिखा सकते हो, इटैलिक्स अंडरलाइन कर सकते हो। इसको कलर चेंज कर सकते हो। इस टेक्स्ट का कलर आप कौन से कलर में है, जैसे आपको येलो चाहिए, रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपको पूरे बैकग्राउंड में कलर डालना है तो आप बैकग्राउंड में भी कलर डाल सकते हो। टेक्स्ट के लिए कलर है, एक बैकग्राउंड के लिए कलर है। तो जहाँ ए लिखा हुआ है ये टेक्स्ट को कलर करता है, और यहाँ जो बकेट की तरह बना हुआ है वो पूरे बैकग्राउंड को कलर करता है। ये देखिए बैकग्राउंड को पूरा कलर कर दिया इसने, और ये टेक्स्ट को कलर कर। यहाँ से आप मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज ये आपने लिखा हुआ है, अब इसको पूरा आपने सिलेक्ट किया। अब इसमें आप अगर पूरे टेक्स्ट में बॉर्डर लगाना, ऑल बॉर्डर, तो ये देखिए भी सारे टेक्स्ट में बॉर्डर आ गए। तो देखिए ये ऐसा आ रहा है ना, मतलब आपने जो लिखा है ये बाहर आ रहा है। तो आप इसको यहाँ पे प्लस एक साइन रहेगा, उसको आप डबल क्लिक करोगे तो ये पूरा जो आपने लिखा है वो एक ही सेल के अंदर में आ जाएगा। अगर आप इस फॉन्ट को बढ़ाना चाहते हो तो ये आपको एक फॉन्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि आप 18 या 28 आप इस फॉन्ट को भी बढ़ा सकते हो, और यहाँ से प्लस साइन को क्लिक करोगे तो फॉन्ट का ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा उस सेल में। अगर आप इस टेक्स्ट के चेंज करना चाहते हो फॉन्ट को, जैसे कि एरियल ब्लैक है, एरियल ब्लैक में एल्जेरियन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह से अपने टेक्स्ट को प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपका फॉन्ट का ऑप्शन है। या फॉन्ट को यहाँ से आप डिफरेंट बॉर्डर सेट कर सकते हो। ड्रॉ बॉर्डर, अगर आपको बॉर्डर ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हो बॉर्डर। लाइंस को भी आप कलर से कर सकते हो, जो आपने बॉर्डर ड्रॉ की उस पर आप कलर भी कर सकते हो। और यहाँ पे मोर बॉर्डर्स मतलब ये आपका एडवांस्ड है कि आपको अगर बॉर्डर ऐसे डॉटेड लाइन में चाहिए तो आप सिलेक्ट कीजिए, इसमें आप सिलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए, तो आपका बॉर्डर डॉटेड लाइन में दिखिए। Thanking you for watching my video. If you like, please share, subscribe my channel.